मैंने बदल दिया। ठीक है। हाँ सर। ओके गुड। बारिश तो बड़ा जोरदार हो रहा है यहाँ पर। हाँ सर, इधर भी है। इधर भी हो रहा है सर। जोरों से चल रहा है बारिश, लेकिन ओके सो यू सी ऑक्सीजन ऑल्सो। मैंने आपका एग्जाम्पल क्या दिया इसमें? NaCl, राइट, इट्स अ टेबल सॉल्ट, करेक्ट। या फिर आपका वाटर, ना, इट्स अ कंपाउंड। यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिया है अमोनिया, ये भी क्या है? ये भी आपका कंपाउंड है, करेक्ट। ओके, so they have their own unique properties. Water has its own unique properties that can differ from elements that make up that compound. तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बच्चों समझने के लिए। क्या समझना है आपको? कि आपके पास क्या है? आप कंपाउंड किससे बना रहे हो? आप Na से बना रहे हो, ठीक है। और आप Ca से बनाओ, कौन सा कंपाउंड बनेगा इससे? NaCl। सोडियम क्लोराइड। इससे बनेगा आपका सोडियम क्लोराइड, ठीक है। दिस विल फॉर्म अ सोडियम। अब बात क्या है ना बच्चों, कि जो सोडियम क्लोराइड जो बन रहा है ना, उसमें जो क्या है, दिक्कत क्या आ रहा है अभी? सोडियम जो है वो क्या है पता है आपको? सोडियम का कभी आपने रिएक्शन देखा है पानी के साथ? नहीं सर। नहीं नहीं सर। सर। नहीं देखा है? नहीं सर। So you don't know how sodium reacts with water. One time I was in laboratory, correct? One time I was in my laboratory, and what I was seeing is that generally in laboratory, what we do is that we do our experiments, and once experiment is done, what we need to do is we need to clear up all the things, and we need to clean it everything, and everything should look very clean after that, correct? So one day, just we had used some sodium and we cleaned it, right? Just like every normal day. I also happened to clean everything, and just एक छोटा सा पीस पड़ा हुआ था सोडियम का, एक छोटा सा सोडियम का टुकड़ा, मतलब मुझे पता नहीं था क्या था ऐसा। I just took it and I put it in the basin, right? I happened to put it in the basin, and as soon as it went into that small piece of sodium into basin, what happened? Correct? Blast. Not a bomb Means blast. it exploded. Not a bomb blast. But whenever sodium comes in contact with water, yeah, fire comes out. Correct? It's a very exothermic reaction. Correct? वो जल जाता है पूरा। और सोडियम को आप पानी में डालोगे तो वो तो पूरा बॉम्ब स्फोट जैसा होता है ना। आप नदी में जाओ और सोडियम को पानी में हाँ फेंको, सर। नदी में जाके सोडियम को पानी में फेंको, ऐसा पत्थर को जैसे फेंकते हो ना, तो पत्थर फेंकते हो तो आपको क्या दिखेंगे? हाँ आपको रिपल्स ही दिखेंगे चारों ओर, राइट? हाँ You are going to see only ripples all around, right? But when you put sodium in the water, what happens? There's a blast, correct? Everything comes, everything just सर, explodes. so you got burned? No, I did not got burned because it was very small piece and very small fire came out from that, correct? हाँ। Sir, it lasts how long? For a few seconds. For a few seconds. Okay. But I'm telling that sodium is very explosive, right? Sodium is highly explosive. As soon as it comes in contact with water, correct, it will explode. Why? Because the reaction. गेलं सगळं. Why? Because property of sodium is such that it is very reactive in nature. Correct, no? That is the property of sodium. Okay. So I'll just show you one video.
Is visible to you? बच्चों दिख रहा है क्या? हेलो. हाँ हाँ सर दिख रहा है. सर दिख रहा है, दिख रहा है. Log it. I'm recording it. And You're Who wants to throw it in? oh, Trevor. I do. I will. Here, give me the glove. All right, I'm gonna just keep throwing it. Oh, explosion! I need a slow motion, Jay. Hold on. Wait. We are recording. He has sodium in his hand. Wait. Can you want me to throw it real far? Hold on. Wait. Can I throw it real far or no? This is sodium. हाँ. That's fine. सोडियम का बहुत बड़ा टुकड़ा है उसके हाथ में. That way? Volcano, what? Okay, here it goes again. Is that a heart? That's sodium. It's going to do. What if the piece landed so near us? ठीक है, समझ में आया अभी? हाँ सर. बहुत धुआंधार रिएक्शन होता है. So that is a very good property of, means it's a property of sodium that it's very reactive. Right? It's very reactive in nature. That's why we don't keep sodium like that. Right? Otherwise it just burns off. Right? So one more I will show you. We'll go down the column on the periodic table in group 1 and look at sodium. Like the lithium, the sodium is stored in a mineral oil to minimize reaction with the oxygen in the air. मिनरल ऑयल में उसको रखते हैं, ठीक है, ऐसे खुला नहीं रखते, तो हवा के साथ भी रिएक्ट कर जाता है वो. If we remove a piece of sodium metal, we notice that it's also coated over with an oxide coating. Group 1 metals become softer as you go down the column. The sodium is much easier to cut than the lithium. As we cut, सोडियम मेटल का प्रॉपर्टी क्या है? और एक इट कैन बी कट विद अ नाइफ आल्सो. चाकू से आप काट सकते हो, इतना सॉफ्ट रहता है वो. off the oxide layer, we can see the shiny metal underneath. It coats over very rapidly with a layer of oxide. The sodium is a metal. बोलो बोलो ना. सर मुझे बस ये पूछना था कि नमक जो होता है उसमें भी सोडियम होता है, तो फिर हम जब वो पानी में डालते हैं तो उस टाइम क्यों नहीं एक्सप्लोड होता? हाँ, that's the suspense we are studying. That's why I'm giving you the suspense. That's why I'm giving you suspense. Wait, we are coming to that. And is an excellent conductor of electricity. If we take a piece of the sodium metal and add it to water, we notice a much more rapid reaction with the water. Like lithium, the sodium is less dense than water and floats.
The metal moves across the surface, being pushed by the hydrogen gas that is produced. As you go down the column with group 1 metals, the melting point of the metal decreases. The reaction is very exothermic, which causes the sodium metal to melt. The metal contracts into a very compact spherical form. We can again test that hydrogen gas is being produced by this single displacement reaction by trapping the gas and testing its flammability. We can test for the fact that we produce sodium hydroxide by adding phenolphthalein. The phenolphthalein turns ये important नहीं है, but just the reaction we wanted to see. It's very highly exothermic reaction. Okay. ठीक है. So you got it. Sodium reaction is very highly exothermic, correct? And chlorine, you know, it's a very poisonous gas. All of you know that. So only we put chlorine in swimming pools, so that Chlorine in swimming pools, but as a gas, it's very poisonous, right? yes. It's not a good gas, and that's why after swimming, what you take? Bath. You take a bath, right? Why? Because it's not good for body, na? That chemicals, it's there, chlorine is there on the body, correct? It's not a good. And why we add that chlorine in water? To be safe from the bacteria and germs. हाँ, right, correct. क्योंकि वो पानी बहुत देर तक रहता है उधर, correct ना? बहुत देर तक उसको रखना पड़ता है और क्या होता है, बहुत सारे लोग आके उसमें नहाते हैं. So, right now it's not good. Correct. That's why you take bath afterwards. Okay. So मैं बता रहा था कि सोडियम का जो प्रॉपर्टी है, किसका? Sodium is a very explosive, highly reactive. Correct. And chlorine is what? It is. Chlorine क्या है? Chlorine is very poisonous gas. Correct. Yes. और ये दोनों मिलके बनाते हैं आपका NaCl, जो हम लोग खाते हैं. करेक्ट ना? हम लोग खाते हैं, ठीक है. अब क्या है, ये तो कंपाउंड बन गया आपका, ये बन गया आपका कंपाउंड, राइट. अब मान लो आनंद शाह ने नमक खा लिया. आनंद शाह नमक खाया कभी? हाँ सर, हर रोज खाते हो, है ना? आनंद शाह ने नमक खा लिया, करेक्ट. तो मूवी वाला डायलॉग नहीं बोल रहा हूं मैं. नमक जिस थाली में नमक उसी में छेद कर दो. नमक खा लिया है और मान लो Na गया आनंद शाह के पेट में, ठीक है. और पेट में तो पानी रहता है, करेक्ट ना? जैसे Na गया वैसे क्या होगा पेट में आनंद शाह के? एकदम ब्लास्ट. करेक्ट है ना? क्या इंटेस्टाइन बाहर आ रहा है यहाँ पर, इंटेस्टाइन यू आर इधर, करेक्ट. और पेट की जो आंतड़ियां है वो इधर उधर फैल गई है. ऐसा होता है कभी? नहीं सर. नहीं सर. नहीं होता है, करेक्ट. और क्लोरीन भी खा रहे हो आप, क्लोरीन भी तो गया. क्लोरीन तो पॉइजनस गैस है ना? ऐसा तो नहीं होता कि पी लिया आपने और आपको चक्कर आ गया क्लोरीन लेते लेते. सर मतलब क्लोरीन ये सॉलिड फॉर्म में पॉइजनस नहीं होता क्या? मतलब डेंजरस नहीं होता, गैस फॉर्म में ही होता है क्या? नहीं नहीं, not like that. See, that's what I'm telling. Why I'm telling all these examples? Because once NaCl, once a compound is formed, you know, a compound has completely different properties than its individual elements. Like that. Okay. मतलब Sir, means when a बोलो. So it is written have their own unique properties that can differ from the elements that make up that compound. Correct, correct, exactly. बोलो, कुछ बोल रहे थे तुम?
Yes, sir. Actually, I was asking you that does it change? They both change their properties. Who changed the properties? The two elements, or maybe whatever elements you are taking, do they change their property after being a compound? See, elements have their own unique properties. Okay. And once elements combine to form a compound, now this compound has its own different properties. So you cannot say elements change the properties. Elements, when they combine to form a compound is having a different property than the individual element, like that. मतलब सर अगर हमने सोडियम में थोड़ा सा कैल्शियम मिला दिया तो फिर वो ब्लास्ट नहीं होगा ना? नहीं, वो रिएक्शन तो होना चाहिए, पता सोडियम और कैल्शियम में कौन सा रिएक्शन होता है? वो तो नहीं पता। सोडियम और कैल्शियम दोनों मेटल है ना, वो कंपाउंड नहीं फॉर्म करेंगे मिलके, फिर वो मिक्सचर बन जाएगा आपका, कंपाउंड नहीं बनेगा। हाँ तो अगर हमने कुछ अलग ऐसा कुछ भी ऐसा मिक्स, हाँ सोडियम और ऑक्सीजन अगर हमने मिक्स किया तो फिर हो सकता है क्या? फिर प्रॉपर्टी चेंज होगी, फिर सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा, उसका कुछ अलग प्रॉपर्टी है। अच्छा। तो कंपाउंड इज हैविंग इट्स ओन यूनिक प्रॉपर्टीज, करेक्ट ना? जस्ट लाइक अमोनिया इज अ कंपाउंड नाउ, ना उसका अलग प्रॉपर्टी है, राइट? एंड इवन वन मोर एग्जांपल आई कैन गिव यू इज दैट ऑफ वाटर। कैसे बनता है वाटर? H2O. H2 plus O2, correct? Yes. Okay. Now, so the H2 plus O na, yeah, O2. It will form twice of H2O. But oxygen always comes in diatomic form, so. Right. So we balance the equation. Yes. Right. Now suppose आपका क्या बन गया है? देखो यहाँ पर आपका पानी बन गया है, ठीक है? आपका नहीं, यहाँ पर जो है उसका कंपाउंड का पानी बन गया है, ठीक है? तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इज कंबस्टिबल, राइट? हाइड्रोजन क्या है? जलता है, कंबस्टिबल है। ऑक्सीजन क्या है? इट इज अ सपोर्टर ऑफ कंबस्शन। यस। ऑक्सीजन क्या है? सपोर्टर ऑफ combustion, बराबर। it supports fire, राइट, करेक्ट। तो एक जल रहा है और एक जलने में मदद कर रहा है, करेक्ट? समझ में आया क्या? एक क्या हो रहा है? जल रहा है, और दूसरा सर फिर हम पानी डालते हैं आग पे, तो आग में पानी डालते हैं तो वो बंद हो जाता है आग। हाँ, राइट। कैसे बुझ जाता है? क्योंकि आप बोल कंपाउंड का अलग प्रॉपर्टीज होते हैं, इसलिए। राइट, एग्जैक्टली करेक्ट। सो वही मैं बता रहा था कि एक तो क्या जल रहा है ना, एक क्या जल रहा है और एक जलाने में मदद कर रहा है, करेक्ट? लेकिन वो जब दोनों साथ में मिलके काम कर रहे तो क्या वो उसी को बुझा रहे। इज अ फायर एक्सटिंग्विशर, करेक्ट ना? Yes, sir. So just like there are two friends, correct? You know, there are two friends, Tanish Mehta and Tarush. Tanish and Tarush. Suppose, I don't know whether you are friends or you have met before. Suppose both of you are friends, okay? Okay. And one of you is jealous of someone, correct? So other person, what he does, one is a good friend, what he will do, उसको जलाने में और मदद करेगा, राइट? कि ऐसा ही है। तो मान लो तनिष्क के मन में आ गया कि अरे उसका तो ऐसा हो रहा है ना, तो तरुष क्या करेगा? हाँ बराबर वैसा ही है, ऐसा ही है, तो जलाने में मदद करेगा, करेक्ट? तो क्या हो रहा है? लेकिन जब दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, अच्छे दोस्त की तरह काम करते हैं, है ना, कोऑपरेशन करके काम करते हैं, तो क्या होता है, राइट? कोई भी नहीं जलता, एवरीवन इज हैप्पी when we work together in a cooperative mood, you know? So whenever there is jealousy in the friendships, correct? So everyone is jealous to some extent, correct?
किसी के पास कुछ ज्यादा आ गया, किसी के पास कुछ अच्छा पेन आ गया, पेंसिल आ गया, नोटबुक आ गया, तो हमको लगता है अरे मेरे पास भी होना चाहिए था। करेक्ट ना? अब तो ऑनलाइन सब चल रहा है, किसी के पास अच्छा लैपटॉप आ गया तो मेरे पास भी वैसे ही चाहिए, है ना? पेरेंट्स को हम लोग जाके बोलेंगे, है ना, मुझे भी वैसे वाला ही चाहिए, क्योंकि उसके पास है इसलिए, है ना? करना कुछ नहीं है, उसके पास है इसलिए मुझे वैसे ही चाहिए। बराबर ना? बट व्हेन come together and when we work, right, then everything is finished. Correct? That's why who is a good friend? Who is a good friend? You know? Who is one is not a good friend, one is who is always there when there is a need. Correct? जब जरूरत पड़ेगी वो वाला दोस्त नहीं है. Like even at good times and even at bad times, one who is always there, that is a good friend. Correct? Suppose you are in a good time and a friend of yours is there, correct, and वो आपको बहुत चापलूसी करता है, correct, but he will not come at bad times, correct. So he is not a real friend, वो time pass friend है. Good friend is one who is there in good times also and bad times also, correct, like that. Okay, clear now? Any doubt here? So you can write down hydrogen is supporter of combustion. Hydrogen is combustible. Oxygen is supporter of combustion. Whereas water is what? Water is what? Fire. Enemy of the fire. It is extinguisher. Fire extinguisher. Yes. Last time, who had quoted a slok from Bhagavad Gita? I had asked once that about Bhumi Rapo Nalo Vayu. You know? Who had quoted? It was knowing full. Anyone? Not amongst you? Ma'am, sir, I think. Huh? I think Charul had. Yes, sir, Charul. Charul? Are you there, Charul? Okay, fine. Is it clear now? Any doubt here? One more very important thing is compound क्या है आपका? Compound is a pure substance. ठीक है? Always remember that compound is what? It is a pure substance. Okay? Always remember this. और जो भी कंपाउंड बनता है उसका एक फिक्स प्रोपोर्शन रहता है. Just like you see, you have water over here. Correct? तो इसका रेशियो कैसा है वाटर का? वाटर रेशियो इज 2:1. 1. NH3 का रेशियो क्या है? 1:3. 1:3. 1:3. करेक्ट. जैसे ये क्या है, किसका रेशियो? एटम्स का रेशियो है. वैसे ही वाटर के क्या मास का भी रेशियो होता है, यू नो. हाइड्रोजन का मास कितना है? मुझे डाउट है सर. बोलो. डाउट है तो सर, अभी H2O2 होता है ना. H2O है ना. उसमें पर ऑक्सीजन डायटोमिक ही होता है ना, तो इधर 2:2 नहीं होता क्या? 2:2 कैसे होगा? H2O है ना. H2 plus O2, H2O2. नहीं, वो हाइड्रोजन वैसा भी बन सकता है. ऐसा भी रिएक्शन होता है जिसमें H2 plus O2 plus gives H2O2, ये भी बनता है. This is called as hydrogen peroxide. Okay, ना. But any equation, what we do is we balance it. H2 plus half O2 gives me
H2O. Like that, great. Okay. Okay, sir. सर ये हम सीखने वाले हैं क्या ये? कौन से एलिमेंट्स? ये से उसको ऐड करना, बैलेंसिंग. वो बाद में देखेंगे. राइट. We'll see that later. Now it's not required. Later on we'll see. सर बोलो. मुझे अभी भी कंपाउंड्स और मिक्सचर में कंफ्यूजन हो रहा है. मिक्सचर अब तक पढ़ा ही नहीं हमने, तो क्यों कंफ्यूजन करना है तुमको? अभी सिर्फ कंपाउंड समझो ना. मिक्सचर इसका आगे का टॉपिक है. ठीक है सर. ठीक है, तो मिक्सचर समझोगे तो और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा. ओके. तो रुको, मिक्सचर जब तक नहीं आता तब तक आप सब्र रखो. अब आपको जाना है, कहाँ जाना है? आपको जाना है बॉम्बे जाना है. सर इसे क्या कहते हैं? मतलब अब हमने ये H2O क्या 2:1 किया, उसको क्या कहते हैं? It's a fixed ratio of atoms, number of atoms का ratio. 2:1 क्या है? Number of ratio of atoms. Thank you sir. तो मैं उसको बता रहा था कि आपको जाना है बम्बई, लेकिन अभी आप क्या हो, रास्ते में हो. आप पहुंच गए लोनावाला. ठीक है. अब लोनावाला में आपको चिंता है, बॉम्बे क्यों नहीं आया, बॉम्बे क्यों नहीं आया? बम्बई दिख नहीं रहा है, कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं दिख रही है. कहाँ है बड़ी बड़ी बिल्डिंग? लेकिन तो रुको आएगा, गाड़ी चल रहा है अब तक नहीं पहुंचे वहां पर. ठीक है, समझे क्या? हाँ सर. अब क्या है, मास. तो ये क्या है, ऑक्सीजन. हाइड्रोजन का है 2, मास 2 है. ऑक्सीजन का मास है 16. ठीक है. तो फिक्स्ड रेशियो ऑफ मास क्या है? 2:16. means if I divide it further, what will I get? 1:8, like that. सर कुछ समझ में नहीं आया. मास का रेशियो है, मास का. ओके, मास रेशियो बाय वेट. सर मतलब ऑक्सीजन का फिक्स्ड रेशियो है ना 16 उसका मास है. हाइड्रोजन के एक एटम का मास 16 है. समझे? ओके सर. हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 है. यहाँ पर 2 एटम है ना हाइड्रोजन के, तो दोनों का मास हो गया 2. ठीक है. 2:16 मतलब 1:8. ये भी रेशियो फिक्स्ड रहेगा. हाँ. जैसे NH3 का सर ये मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो अभी नहीं देखना, वो आपको हायर स्टैंडर्ड में आप देखोगे हाउ टू कैलकुलेट द मास. राइट. देयर विल बी चैप्टर कॉल्ड एज मोल कांसेप्ट, है ना. हियर देयर विल सी देयर इज अ मशीन. क्या सर नाम क्या है उसको? स्ट्रक्चर मोल कांसेप्ट, जो कि अगले साल आएगा. अभी नहीं देखना है आपको. But however, there is a machine called as mass spectrometer. Through that machine, they calculate the mass. Okay, sir. Okay. Any other doubt anyone has? No, sir. सर मतलब अगर हमने हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल लिए और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल लिया तो हम वाटर बना सकते हैं? हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल लिए और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल लिया, ऐसा बोल रहे हो क्या? हाँ सर. या कौन बात कर रहा है? नहीं सर, सॉरी, बहन से बात कर. यस, राइट. एक्चुअली दिस इज रिएक्शन जो आपको बनाएगा, लेकिन टिल डेट हार्डली एनीवन इज एबल टू मेक वाटर इन द लैबोरेटरी. करेक्ट. किसने बनाया है वाटर लैबोरेटरी में? नहीं बनाया है. राइट. ऑफ कोर्स यू कैन मेक अ रिएक्शन लाइक दैट. करेक्ट. But the abundance of water which you have got in the environment is so huge, right? Almost 97% of water, right? It's all salty water, correct? Yeah. So in lab, it's very difficult to make water, correct?
अदरवाइज देयर इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन, पानी कमी हो जाती है तो हम लोग लेके आते हैं हाइड्रोजन, लेके आते हैं ऑक्सीजन लेके। हाइड्रोजन तो है एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन भी है, करेक्ट है ना। दिस जस्ट अ केमिकल रिएक्शन टू शो दैट हाउ इट कैन कम टुगेदर, बट या यू कैन नॉट मेक इन लैबोरेटरी। सर अर्थ पे अगर हमारे पास लेबोरेटरी है तो हम उसमें इतने सारे हमारे पास अच्छे अच्छे चीज है, तो हम यहीं पे फिर भी नहीं बना सकते, तो फिर वो जो मार्स पे पानी बनाने का प्लान कर रहे हैं वो कैसे करेंगे? मार्स पे पानी बनाने का प्लान कर रहे हैं, अब हमको भी पता नहीं है कि मार्स में कैसे टाइप का पानी है ना। अब मार्स में H2O ही रहेगा। सर पानी अलग अलग टाइप का होता है क्या? मतलब नॉट लाइक दैट, करेक्ट, बट द सरफेस कंडीशंस देयर आर डिफरेंट ना। मार्स का कंडीशन, वो क्या पीते हैं क्या, हमको भी कुछ नहीं पता है, करेक्ट, व्हाट दे ब्रीथ। हाँ राइट सर, हम आर्टिफिशियल वाटर बना सकते हैं क्या? आर्टिफिशियल वाटर, या बना सकते हैं। हाउ यू आर टेलिंग? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर। That's what I'm telling. It's very difficult to form in a laboratory. But it is possible, ना? हाँ सर, ऐसे एक अच्छे बकेट में फिर हाइड्रोजन की गैस छोड़ने की, फिर ऑक्सीजन की छोड़ने की तो बना सकते। करके देखो, मुझे बताओ कितना पानी तुमने। हाइड्रोजन मिलना चाहिए ना सर। हाँ, इतना आसान होता है क्या हाइड्रोजन मिलना? करेक्ट। सर अभी वो ऑक्सीजन बनाने की मशीन भी लॉन्च हुई ना, डीआरडीओ ने लॉन्च किया अभी। यस राइट, तो टू सम एक्सटेंट यू कैन मेक, बट है ना, राइट, बट वी शुड बी वेरी थैंकफुल टू द नेचर, so much water we have got, correct, it's raining, no? We have got it, correct. तो इतना पानी कि लैब में बनाने का जरूरत ही नहीं है हमको, करेक्ट ना? राइट, सो मच वी हैव गॉट। नहीं सर, अगर सऊदी अरेबिया या कौन से भी ड्राई कंट्री में चाहिए तो कर सकते हैं ना। नहीं, अभी सऊदी अरेबिया वगैरह में वो तो ओशन का पानी लेते हैं, पर ओशन वाटर they will evaporate it. यस सर, वो ओशन का पानी लेके मशीन से अच्छा पानी बनाते हैं। उसमें का सारे सॉल्ट्स और मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। Right. लेकिन सर उसे से 5 मिनट वगैरह नहीं लगते, उसके लिए सालों साल लग जाते हैं। किसके लिए? नहीं, सब उसमें से सारे टाइप की केमिकल्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, राइट। सालों साल अगर करने बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो लगता ही है बहुत ज्यादा टाइम। इसके लिए